आज का ये सेशन एक इंतहाई मुनफरिद सेशन है। आज हमारे साथ इस सेशन में शामिल हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वो 8 ख़वातीन जो नर्सिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं और जिन्हें हाल ही में दुनिया भर की 100 बेहतरीन नर्सेस और मिडवाइफ्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। साल 2020 में इस लिस्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई आलमी इदारों ने मिलकर शाया किया है। और ये हमारे लिए इंतहाई एजाज़ की बात है कि आज ये तमाम 8 प्रोफेशनल नर्सेस हमारे साथ इस लाइव वेबिनार में शरीक हैं और मैं इस शिरकत पे इन तमाम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इस सेशन का आगाज़ हम करेंगे अपने गेस्ट्स के इंट्रोडक्शन से एंड लेट मी बिगिन विद डॉक्टर रोजीना करमयानी। Dr. Cruzina is a professor and dean of School of Nursing and Midwifery at Aga Khan University School of Nursing and Midwifery. She has a PhD from University of Minnesota. She also has a BSc from Aga Khan University, so she is an alumni. She was honored in the board and management category by WHO in recognition of our efforts to spearhead improvements in adolescent health, strengthen research capacities, and integrate research into education and practice. Dr. Rosina, thank you very much for joining the session today. Thank you, Salman. Excellent, thank you. Our next guest today is Dr. Shaila Hirani. Dr. Shaila is an associate professor at University of Regina in Canada. She is joining us from Canada today. Good morning there. Previously, she was assistant professor at AKU. She has a PhD in nursing from University of Alberta, and she is also an alumni of Aga Khan University School of Nursing and Midwifery. She was recognized in the community hero category for her efforts to promote, protect, and support breastfeeding during the COVID-19 pandemic. Dr. Shaila, thank you for joining us today. Thank you so much. Thank you. Our next guest is Ms. Yasmin Parpio. Ms. Yasmin is an assistant professor at School of Nursing. She has a BSc from School of Nursing and Master of Science in Epidemiology and Biostatistics from Aga Khan University. She is also recognized in the community hero category for her efforts to promote, especially for efforts and services in the health nursing. So Dr. Yasmin, thank you for joining us today. Thank you, Salman. All right, so our next guest for today is Ms. Samina Varteji. She is an assistant professor at School of Nursing at AKU. She has a BSc from Sonam and a Master of Science in Health Management from University of Wollongong. She was recognized as in the community hero category as well for her services in community health nursing. Thank you so much for joining us, Ms. Samina, today. Thank you, Salman. Our next guest is Ms. Saima Sachwani. Ms. Saima is also an assistant professor at the Aga Khan University School of Nursing and Midwifery. She has both bachelor's and master's from the School of Nursing. She was recognized in Human Capital Development category for her contribution in developing impactful nursing curriculum. Thank you very much for joining us, Ms. Saima, today. Welcome. Our next guest now is Ms. Marina Baig. Ms. Marina is a senior instructor at the School of Nursing. She has a bachelor's in nursing from the School of Nursing and Midwifery at Aga Khan University Hospital. She has been recognized for Innovation, Science and Health category for leveraging mobile health technology to improve maternal health outcomes. Thank you for joining us, Ms. Marina. Thank you, Salman. Okay, our next guest is Ms. Sadaf Salim, joining us from Canada. Sadaf is a senior lecturer at University of Alberta in Edmonton, Canada. She is also a graduate of the School of Nursing. She has been recognized in the community hero category for her contributions to geriatric nursing.
Thank you, Neil, Sada, for joining us from Canada today. Thank you, Salman. Last but not very least, our guest is Ms. Neelam Punjani. Ms. Neelam is currently a student, as they say, a student for life. And Ms. Neelam is currently a PhD candidate in University of Alberta in Canada. She has a bachelor's and master's from School of Nursing. She has also been recognized in the Community Hero category for her work in improving access to sexual and reproductive health rights. Neelam, thank you for joining us at a very good morning in Canada. Thank you, Salman. Acha ji. So this would be an sort of an interactive session with all our panelists. And so I want to begin with Dr. Rosina. Rosina, आपका ताल्लुक नर्सिंग की फील्ड में बहुत सालों से है. And I want to understand, and we all want to sort of know, what inspired you to come into this career and go such a long way in this career? Thank you, Salman. First of all, I'd like to congratulate you and Aga Khan Education Board for celebrating this important week for youth, especially during this time of pandemic. I think this week is very, very important and focusing on the higher education and for the youth is commendable. So बहुत मुबारक हो आपको और Aga Khan Education Board को. लोगों को शायद लगता होगा सलमान मेरी तरफ अजान शुरू हुई है. If you want to take any other panelist, you can, or I can continue. आपको जो मुनासिब लगे. Please continue, it's okay. Okay. शायद कुछ लोगों को ये लगता है जब वो मुझसे बात करते हैं कि आपने बहुत प्लान किया होगा, बहुत सोचा होगा और इस प्रोफेशन में आए हैं तो हमें भी बताएं. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल एक्सीडेंटल था, लेकिन इस एक्सीडेंट में जो सिस्टम में इशू थे उसका फ़ायदा मुझे और मेरी फैमिली को अल्टीमेटली पाकिस्तान को हुआ. और वो ये था कि आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग फार्मेसी. मेरे अंकल काम करते थे बूट्स कंपनी में और ब्रुफिन जो है टैबलेट वो उन्होंने बनाई थी. हम सब लोग ब्रुफिन को रेड जादू की गोली कहते थे, जितना भी बुखार हो ब्रुफिन से सही हो जाता है. तो मेरा बड़ा ख्याल था कि मैं रिसर्च में जाऊंगी और इस तरह की कुछ और दवाइयाँ बनाऊंगी. उस ज़माने में फार्मेसी सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी कराता था और कराची यूनिवर्सिटी बहुत ही पॉलिटिकल इश्यूज़ का शिकार था. मैंने बहुत दफ़ा ट्राई की कराची यूनिवर्सिटी में, पता चला कि 4 साल का प्रोग्राम 6-7 साल में होता है. तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कभी कभी हम देखते हैं कि सिस्टम की नेगेटिविटी से कभी लाइफ में आपको मिलती है, जैसे अभी कोविड है, उसकी भी सिल्वर लाइनिंग्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं. इसी तरह से ये अपॉर्चुनिटी थी कि हेल्थ सिस्टम के अंदर तो अच्छाई थी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बड़ा पॉलिटिकल इश्यूज थे, इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं थे. उस दरमियान REC रिलीजियस एजुकेशन सेंटर में मेरी एक दोस्त पढ़ती थी जो नर्सिंग की उस वक्त स्टूडेंट थी. उसने कहा कि ओपन हाउस है, तुम आओ देखो तुम्हें कैसा लगता है. एंड वी स्टडी फार्मेसी इन एवरी सेमेस्टर. तो मैंने कहा ठीक है. एंड आई केम टू द ओपन हाउस ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड देयर वर 3 थिंग्स व्हिच इंस्पायर्ड मी. फैकल्टी of the university. I met with the faculty जो कि होली फैमिली से ग्रेजुएट थी, मैकमास्टर से ग्रेजुएट थी, कनाडा के और अमेरिका के दूसरे हिस्सों से थी, और पाकिस्तान में डाउ यूनिवर्सिटी, उस ज़माने में हम जिना हॉस्पिटल कहते थे, वहाँ से. तो जो बाद में मेरी डीन भी बनी डॉक्टर यास्मीन अमरसी, वो फैकल्टी. तो इस तरह की जो फैकल्टी थी, दे वर एक्सट्रीमली केयरिंग, कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी. उन फैकल्टी से मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वॉज वेरी एनर्जेटिक. देन दे गेव मी अ टूर. सो AKU की जो बिल्डिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट था, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एनवायरनमेंट, बी इट अ हॉस्टल एनवायरनमेंट और क्लासरूम एनवायरनमेंट और लाइब्रेरी एनवायरनमेंट. उसको देख के मुझे लगा कि ये तो ओएसिस इन कराची है, ऐसा तो कुछ पाकिस्तान में नहीं है. सो दैट बिल्डिंग वॉज वेरी इंस्पिरेशनल. उसका आर्किटेक्ट एंड उसकी हर चीज, ऑल द रिसोर्सेज जो थे, अब तो और भी ब्यूटीफुल हो गई है और एक्सपेंड हो गई है. जो उसकी थर्ड चीज थी वो उसका करिकुलम था, क्योंकि जब मैंने उसके करिकुलम में देखा, इट वाज वेरी होलिस्टिक करिकुलम.
उसके अंदर फार्मेसी के साथ एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, नर्सिंग केयर। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। मेरे फादर इसके फेवर में उस ज़माने में नहीं थे, क्योंकि नर्सिंग को ज़माने में इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। अब तो रिवर्स हो गया है, पेरेंट्स कहते हैं जाओ, बच्चे कहते हैं कुछ और भी करने का है। तो बच्चे अपने पैशन को चूज़ करते हैं। उस ज़माने में जब मैंने डिसाइड किया, तो मेरे फादर ने कहा कि यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड नर्सिंग वाज़ कंसिडर्ड ड्रॉप आउट फ्रॉम द हाई स्कूल। तो उन्होंने कहा आगे पढ़ना चाहिए तुम्हें, तुम क्यों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही हो? क्योंकि उस वक़्त ये कंसिडर था कि आप हॉस्पिटल में जाएँगे, नर्सिंग करेंगे, साथ ही जॉब शुरू हो जाएगी, कोई करियर लैडर नहीं है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, इसका कोई करिकुलम नहीं है। तो मैंने अपने फादर से कहा कि आप आएँ मेरे साथ ओपन हाउस में। अनफॉर्च्यूनेटली फादर के साथ एक एक्सीडेंट हुआ, जो कि माइनर था, उनकी लाइफ से हुई, मगर उसने मेरी लाइफ चेंज की। वो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट था, ही वाज़ एडमिटेड इन होली फैमिली। A nurse Anne worked so well with him that he came back home and he said, if it wasn't for a nursing care, I wouldn't be surviving and so good feeling and coming back home. तो उसके बाद उन्होंने कहा चलते हैं, विजिट करते हैं। जब उन्होंने विजिट किया और टीचर्स और करिकुलम एंड एनवायरनमेंट देखा, इमीडिएटली उन्होंने मुझे अलाउ किया। मगर उसके बाद जब मैंने डिप्लोमा खत्म किया, तो आगे पढ़ने की जो ख्वाहिश हुई कि अंडरग्रेड भी करना है, मास्टर्स भी करना है, पीएचडी भी करना है, तो वो ख्वाहिश इस तरह से पैदा हुई कि मैंने देखा कि डॉक्टर्स बहुत हैं। इंटरेस्टिंगली हमारी अपनी गली के अंदर, मैं प्लैटिनम एरिया में रहती थी, हमारी अपनी गली के अंदर जनरल प्रैक्टिशनर 5 थे। अब वो, मैंने कहा इतने सारे डॉक्टर्स हैं, जब मैंने हेल्थ सिस्टम्स को पढ़ा, तो दुनिया भर में एक डॉक्टर के लिए 5 नर्स होती हैं। पाकिस्तान में 5 नर्सों, कमी इतनी ज़्यादा थी नर्सों की कि 5 डॉक्टर हों तो 1 नर्स होगी। और इसकी वजह से मुझे लगा कि ये ऐसी फील्ड है कि जिसमें मुझे जाना चाहिए और आगे पढ़ना चाहिए। ओवर बैक टू यू सलमान। Very, very inspirational. Thanks, Dr. Rosina. So, Shaila, what made you take nursing as your first career choice? First of all, thank you so much for having me here. I would say कि नर्सिंग जो है वो हमेशा से मेरा फर्स्ट कैरियर चॉइस रहा है। और ये तब की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ती थी। और क्या ऐसे रीजंस थे कि जिसने मुझे रियली इंस्पायर किया। बहुत दफ़ा जब स्कूल के ज़माने में टीवी देखते थे तो मालूम होता था कि पाकिस्तान में कई बच्चे जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। कितनी अमवात उनमें जो है वो बहुत कॉमन है। औरतों में वॉयलेंस के रेट्स काफ़ी हाई हैं। औरतें जो हैं वो ज़चगी के बाद जो है वो डेथ्स हो जाती हैं उनकी। और ये सब ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर मुझे लगा कि क्यों हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, और क्या मैं एज़ अ नर्स अगर मैं फ्यूचर में बन जाती हूँ तो कैसे मैं एक अहम किरदार अदा कर सकती हूँ। ये कुछ ऐसे इंस्पिरेशन पॉइंट थे, एक ऐसे पेनफुल पॉइंट्स थे कि जिस पे मैंने बहुत सोचा। और वहाँ पर मैंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना मैं एक नर्स बनकर जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ और कुछ ऐसा करूँ अपनी लाइफ में, अपने करियर के थ्रू, कि जहाँ वो छोटे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा बीमारी का शिकार है, या वो औरतें जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और इवन बिफोर द चाइल्ड बर्थ। तो वहाँ ये वो तमाम चीज़ें थी जिसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया और मुझे एक मोटिवेशन दिया कि मुझे जो है वो एक नर्स बनकर अपने मुल्क के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, इवन कि अपने नेबरहुड के लेवल पे मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। तो जब मैं मैट्रिकुलेट कर रही थी या फिर जब मैं इंटरमीडिएट में थी, ये वो टाइम था कि जब मैं काफ़ी जो है वो अच्छी स्टूडेंट रही थी, हमेशा मेरा A1 ग्रेड्स आते थे स्कूल में, और इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेट दोनों में A1 ग्रेड आया। और जब मैंने सबको बताया कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ, तो सबने मुझे क्वेश्चन किया कि क्यों भाई, तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन एक जो मोटिवेशन था, जो कुछ भी मैंने अपनी सोसाइटी में देखा, जो कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन थे, और फिर चांसलर हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान का जो भी विजन था, उसने मुझे काफ़ी गाइड किया। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे मैं आज भी फ़ख्र महसूस करती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने इसमें मुझे बहुत सपोर्ट किया और आगा खान यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी नर्सिंग करियर का आगाज़ किया, एंड दैट्स समथिंग आई एम स्टिल प्राउड ऑफ। Thank you, Shaila.
मेरा अगला सवाल यास्मीन से होगा. बस यास्मीन, you have been sort of in a career of nursing which is very very demanding, and sometimes ऐसा होता है कि patient care जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें focused होता है, और उसके अंदर आपको family से बहुत ज़्यादा support चाहिए होता है. तो आपको लगता है कि family plays a very very important role in becoming a good nurse? थैंक यू सलमान. यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल फैमिली के सपोर्ट के बगैर मुझे लगता है कि इस प्रोफेशन में फर्दर जो है वो सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मैं आपको जो है वो अपनी एग्जांपल शेयर करूंगी कि नर्सिंग वाज नॉट अ फर्स्ट करियर चॉइस फॉर मी लाइक माय अदर कोलीग्स, but due to some financial constraints my family supported. My family said that it's a good career, go ahead, do it. And today I really feel proud that I'm a nurse, I'm a part of nursing fraternity, and the career has given me a lot of remarkable, I would say, impact on my family, on my own growth. So family ke support ke bagay it was very very difficult, since you know that nursing is a demanding profession. There are times jahan pe humko night duty bhi karni padti hai, night shift bhi hoti hain. So without family support it is not easy. Aapko pata hai ki in our culture females are expected to come home and work. So family was understanding the situation ke career jo hai wo challenging hai, demanding hai. They were not only supporting in studies financially, but they were also supporting us with other responsibilities which a woman is supposed to take care of. So I just tell all the parents ke if you want your daughters or your sons to pursue nursing, it is not possible without your support. Excellent. All right, thank you. Sadaf, I want to turn to you and ask, what happened in your life? What inspired you to become a nurse? Hello, Salman. As all my professors said, nursing was not my first choice. I wanted to be chartered accountant. Wow. It's my mom's dream. I always give credit to her. She was like, I know you, girl. You cannot do well with numbers, because I was always struggling with maths and numbers. It's like always daunting. But I don't know, because my dad was accountant and manager. So, and I was very young when I lost my dad. So I always used to, carry him as like, Daddy jaisa banna hai, Daddy jaisa banna hai. So I was like, no, I want to go in a bank and I want to have my own office and I want to be accountant, 9-to-5 job, life settled. And then mom is like, I always had a dream to be a nurse, and I want you to be a nurse, because I was the only child. So she's like, you're the only one who can fulfill my dream to be a nurse. And I'm like, nursing and me, mommy, that's not possible at all. Like, bilkul bhi nahi. It was at that time, it was like so daunting for me. I'm like, nahi, mommy, aisa nahi bola. And she's like, no, you go try. If you get success, I'll be happy. If not, then at least do 1 degree for me. After that, you can join CPA if you want. And I'm like, you sure? She's like, yeah, go for nursing. And after that, you can do CPA. I'm like, okay, fine, I'll do degree for her. And then I'll free and I go and join my accounting. And I came to nursing, and I'll tell you, first 3 months was like scariest month of my life. रोजाना सुबह उठना, जब हमें अर्ली क्लिनिकल्स के लिए जाना पड़ता था, इतना मुश्किल लगता था. ऐसा होता था कि यार ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा. It was like so daunting at that time. But I always say my professors helped me a lot. I still remember Miss Nausheen Salim, who was our first teacher, and she gave us so much hope and courage. And I think after 1 year, I was like, no, this is where I belong. My mom was right. This is where I can do something, because I think nursing is a career where you can not only be with human being, but you can also work with their problems, their issue. You can handle them as a holistic perspective. Like आप अपनी फैमिली लाइफ को जिस तरह चलाते हैं, ऐसे ही आप अपने पेशेंट्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, आप एक ब्रॉडर लेवल पे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं. And when you're part of health system, you know what's going on in the health system, what are loopholes. And as a health professional, you can work with those people at that level to correct those loopholes. और फिर जब मैं नर्सिंग में आई, it was so eye opening for me, and I was like, no, this is where I belong. And I never thought to go back. Like many times people like, now you want to join
further career, and I'm like, no, if I want to do PhD, it will be nursing, no more other direction for me. So yeah, that was a small story from me. Thank you. Very very inspiring story. Marina, मेरा आपसे सवाल होगा कि how different is your story and sort of who inspired you and supported you to become who you are today? Thank you, Salman. For like others, nursing, I came in nursing by chance, and I tell you a brief background. So I belong to a family, I mean, a low socioeconomic background and not very financially stable. So after completing my matric and inter, I started teaching in a community school. And there, after 1 year of teaching, I and one of my colleagues with me, and we were discussing like how what we have to do further. And in teaching, we cannot do at that time. Teaching का इतना ज़्यादा scope as such नहीं था, ये ECD and early childhood development ये सब बाद में आया. So उस time पे when we were discussing and we thought कि हम क्या करें ना, और financially तो इतना stable है नहीं, so we were not thinking for doing something, doctor बनना है, ये करना है. So at that time, one of our colleagues who has joined nursing and she was in second year, she told us about nursing, and उन्होंने visit भी कराया. जब हमने सब देखा, so we were like, okay, so this is the profession कि यहाँ पे हम जा सकते हैं. और maybe the financial जो status था, so that pushed us to join nursing. ताकि क्योंकि इसमें भी हमने सुना कि like scholarships हैं, financial assistance and things like that. So we entered into this profession. I entered in this profession, and the support from the family was like my father financially, though he was not able to support me much. So I did, financial assistance and scholarship. But yes, definitely his trust, उनका जो trust था मुझ पे कि yes मैं कर लूंगी और कुछ करूंगी. So उसने मुझे बहुत encourage किया. And then sibling support, that when nursing is a profession that is very demanding, जो कि बहुत time आपसे मांगता है. You are in duties like morning, evening, nights. So there are people at the back at home who are working for you. So it is a blessing जब आपको तैयार खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, ready सब कुछ आपको जो है वो घर की, क्योंकि आपको responsibilities जो आपके घर पे हैं वो आप नहीं कर सकते हैं. So someone else like my siblings, they were doing everything for me. और इसके अलावा इससे ही रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको शेयर करूंगी कि अभी कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले वी वर टॉकिंग टू समवन, मी एंड माय सिस्टर, और वो बात करते करते वी वर डिस्कसिंग समथिंग पेरेंटिंग स्किल्स, और उस पर डिस्कशन हो रहा था. तो वी वर डिस्कसिंग के पहले तो वो डांट भी पड़ती थी, जो है वो डैडी मारते थे, डांटते थे, इतना गुस्सा करते थे. So she was saying कि हमने कितनी मारो डांट खाई है ना डैडी से और मम्मी से. So I said, so at that time I said कि मैंने ज्यादा डांट और मार नहीं खाई है. So her response was like, आप घर पे होती कब थी? डांट और मार खाने के लिए और काम करने के लिए तो हम ही थे वहां पे, सब करते थे. So fun apart, like sibling support, family support बहुत ज्यादा important है. Very interesting. सबको I think अपने बचपन की याद आ गई होगी. Turning to Neelam. Neelam, bachelor's, master's, PhD, not an easy journey. क्या आपको support मिला family से, mentors से? So to be very honest, when I entered into the nursing profession, I never knew कि master भी exist करता है nursing में, या PhD भी exist करता है. Nursing में इसलिए आ गए थे क्योंकि हम colony system में रहते थे. वहाँ पे हम देखते थे nurses जो है morning में, evening में, night में वैन्स के थ्रू जा रही होती थी. तो पेरेंट्स को बहुत था कि नहीं, हमारी बेटी भी जो है वो नर्सिंग करे. तो नर्सिंग में आया, उसके बाद पता चला कि वो नर्सिंग इज नॉट ओनली क्लिनिकल केयर बट इट्स अ लॉट मोर देन दैट. जैसे मेरे कॉलीग्स ने बताया कि इट्स नॉट ईजी. आपको मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट की शिफ्ट जब करनी पड़ती है तो इट्स वेरी हार्ड. योर फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. एक टाइम आया था जब मैं क्लिनिकल नर्स थी, और उस वक्त हमारे यहाँ से बहुत सारी नर्सेस थी जो उस वक्त सऊदी अरब जा रही थी टू कंटिन्यू देयर नर्सिंग प्रोफेशन, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव सैलरीज थी. तो उस वक्त मुझे याद है मैंने अपने फादर से कहा था कि
मुझे भी जो है वहाँ सऊदी अरब जाना है नर्सिंग करने के लिए, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स गए हैं, और ड्यूरिंग सेम टाइम जो है मेरा मास्टर्स में एडमिशन हुआ था। तो मेरे फादर ने ये कहा कि नहीं, आप मास्टर्स में पहले आप अपना मास्टर्स कंप्लीट करो, एंड यू नो यू कैन स्टिल डू योर जॉब व्हेन एवर यू वांट। सो देन आई केम इनटू मास्टर्स प्रोग्राम। आई वाज वेरी लकी, जो कि मेरे फैकल्टी मेंबर्स थे, जितने भी मेंटोर्स थे, उन्होंने मुझे इस तरह से सपोर्ट किया कि मैंने अपने करियर को क्लिनिकल से ज़्यादा आगे भी देखा। फॉर एग्जांपल, मैंने हॉस्पिटल लीडरशिप में भी काम किया, एज ए हेड नर्स भी काम किया। फिर मुझे समझ आया नहीं, शायद मेरा इंटरेस्ट रिसर्च में ज़्यादा है, मैंने रिसर्च में भी काम किया। फिर एक वक्त आया कि आई वेंट इनटू द आखान डेवलपमेंट ई हेल्थ रिसोर्स सेंटर, क्योंकि मुझे लगा टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसी तरह मैंने अपना इंटरेस्ट एक्सप्लोर किया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट. Nursing is not only limited to clinical nursing. You can go into research, you can, you know, go into administration, you can go into leadership, you can go into research, but it's very important to have good mentors. And I'm very proud to say कि मेरे बहुत अच्छे mentors रहे हैं, और जिसमें से कुछ यहाँ पे भी मौजूद हैं. I think Miss Yasmin, Miss Amina, Miss Saima, Dr. Rosina, Dr. Sheila, everybody had taught me. So they were all my teachers. And other than that, you know, even when I'm doing my PhD here in Canada, so for my PhD, मेरी जो supervisory committee है, उसमें भी हमारे पास एक जो alumni है, Dr. Saima Hirani, she's part of my, you know, committee. So I feel very proud कि, you know, जो मौला बात करते हैं हमेशा bridging की, तो ये जो connections हैं, वो अभी भी जो है वो मौजूद हैं. You know, these people are like always available. So if you are pursuing career in nursing, it's very important to have nice mentors. And again, family support is also very important. Thanks. Wow, you have sort of laid out so many careers that nurses can go in. This has become a 2-minute career session for a lot of aspiring. Saima, I want to turn to you. Neelam mentioned कि इतने सारे career pathways हैं nursing के अंदर, but you chose to be an academic within the nursing profession, and I want to know what inspired you to sort of take this particular career pathway. थैंक यू सलमान. जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो नर्सिंग का जो पैकेज है ना, वो आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है. तो आर्ट विदाउट साइंस नर्सिंग नहीं बनती है, और साइंस विदाउट आर्ट जो है ना, वो भी नर्सिंग नहीं बनती है. तो जब हम क्लिनिकल सेटिंग, क्योंकि बहुत कॉमन परसेप्शन ये है कि जब नर्स होती है वो बेड साइड के ऊपर पेशेंट केयर को टेक केयर कर रही होती है, तो यहीं पे कहानी शुरू होती है, एंड दैट इज हाउ इट इज फॉर एवर. जब हम रियलिटी की बात करते हैं कि जब करिकुलम में ट्रेन हो जाते हैं और जब आप करियर स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर तो आपको, क्योंकि बेसिक्स अभी पढ़ के निकल रहे होते हैं और आप फ्लोरिश कर रहे होते हैं करियर के अंदर, अभी तो आपने पाँव रखे होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उस वक्त पेशेंट केयर इज द की थिंग. जो आपने नॉलेज लर्न की है आप उसको अप्लाई करते हैं, मगर आप नॉलेज को पीछे से जनरेट करने वाली कैपेसिटी में नहीं आ रहे होते हो. तो जो वो पेशेंट केयर दे रहे होते हैं या कम्युनिटी के अंदर जब वो केयर दे रहे होते हैं, दैट इज द आर्ट पार्ट ऑफ इट. कि जो साइंस पीछे से सीखी थी, जो एविडेंस बेस्ड नॉलेज जो पहले से आई थी, उसको यूटिलाइज किया. जब आप उसके अंदर प्रोग्रेस करते हैं और थोड़ा सा होल्ड आ जाता है, तो हमें उसके साइंस के पार्ट की इंपॉर्टेंस भी समझ में आती है कि जैसे प्रैक्टिस आज से 100 साल पहले थी, ह्यूमंस 100 साल पहले थे, हेल्थ प्रॉब्लम 100 साल पहले थे, अब वो नहीं है. तो जब एरा चेंज हुआ, नीड्स चेंज हो गई, तो उस आर्ट को फ्लोरिश करने के लिए, एक नया खाना देने के लिए, नया फ्यूल देने के लिए, तो उसकी दूसरी कौन सी चीजें हैं जो उसको सपोर्ट करती है? तो वो कांस्टेंट साइंटिफिक इंक्वायरी से आती है, वो करिकुलम के अंदर चेंजेस से आती है. तो वो उसको जब एक एकेडमिशियन होता है तो वो उस एजुकेशन में इनोवेशन लाता है, वो साइंटिफिक इंक्वायरी में एंगेज होता है, वो कम्युनिटी सर्विस में एंगेज होता है, और वो जो फिर उस वक्त मशवरा, साइंटिफिक एविडेंस वगैरह प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसको एक क्लिनिकल नर्स जो होती है, वो उसको अप्लाई करके चेक करती है, और वो इसके ऊपर एक फीडबैक का, क्योंकि दोनों बहुत इंटीग्रल है. नर्स इज अ नर्स, ठीक है, वो इस वक्त क्लिनिकल सेटिंग में मौजूद है या वो इस वक्त एकेडमिक साइड के ऊपर करिकुलम और रिसर्च को डील कर रही हो, मगर ये दोनों एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल है, एक मिरर के दो साइड्स हैं, आप ऐसा कह लें. तो वो जो फिर फॉर एग्जाम्पल, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे दूं, आजकल कहते हैं कि गट ब्रेन का बहुत कॉम्बिनेशन है, पेट के बहुत सारे मसलों को आप हल कर लो ना, तो आपकी 70 to 80% हेल्थ है ना, बाकी सही हो जाती है.
योगर्ट इतनी लो कॉस्ट चीज, इतनी एक्सेसिबल चीज है, तो अगर वो लोगों को सिखा दी जाए कि भाई डेली आप डाइट का इंटेक वगैरह ले लो, आज से पहले तक ये बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल प्रमोट नहीं होता हो, लेकिन रिसर्चर्स अगर ये प्रूव कर दे कि योगर्ट के इस्तेमाल को प्रमोट करने से लोगों की हेल्थ अच्छी हो जाती है और उससे जो कॉस्ट ऑफ केयर कम हो जाती है, हॉस्पिटल पे डिपेंडेंस कम हो जाती है, तो इस सारे साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई कौन करेगा? जो क्लिनिकल सेटिंग में लोग हैं वो उसको अप्लाई करेंगे, वो फीडबैक देंगे, हाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना? तो वो क्या होता है कि वो आर्ट पार्ट वो उस इम्प्लीकेशन या उस इम्प्लीमेंटेशन को कहते हैं, मगर वो आ कहाँ से रहा है, तो उसके पीछे कुछ सोर्सेस हैं जो उसको ब्यूटीफाई करती रहती है, हमेशा उसके अंदर चार चांद लगाने की कोशिश करती है, वो उसको प्रूव करती है, वो उसको रिफ्यूट कर रही होती है। तो क्योंकि मेरा माइंड बहुत साइंटिफिक और इंक्वायरी वाला था, और जब मैं स्कूल में थी तो करियर काउंसलिंग में था और जमात खाने में फरमान में था ऐसा, हाजी माम की तरफ से गाइडेंस थी कि नर्सेस पीएचडी करके रिसर्च कर सकती हैं, तो मेरा माइंडसेट उस तरह का था। तो उसी तरीके से मैंने शुरू एज अ क्लिनिकल नर्स के तौर पे किया, बट मुझे फ्रॉम द बिगनिंग जब मैं क्लास 7 में थी मुझे पता था कि मुझे पीएचडी करना है और मुझे रिसर्च करनी है, तो वो इस तरीके से दैट हेल्प मी टू शेप माय करियर इन नर्सिंग। ओवर टू यू सलमान। Thanks, Saima. This is very nice. Samina, you want to sort of elaborate more on this particular point कि जब आप एक instructor बन जाते हैं, faculty में आ जाते हैं, your engagement with clinical nursing sort of continues in variety of ways. That's very right. Salman, before I respond to that question, add little more to what Saima or Dr. Rosina earlier said, if you allow me. Basically, what you asked Saima about choosing academician to be the academician is very important question to address here. And if you see our history of AKU Sonam, I mean, in fact, leave alone AKU Sonam first and go back 30-40 years back, nurses were never, as Dr. Rosina said, never considered very competent people to be educators, to come into academia. And most of the schools of nursing used to have medical people to train nurses. But with His Highness's vision to improve image of nursing in Pakistan, establishment of AKU Sonam, and one key thing which was done at AKU Sonam, what I can say here, and maybe others can concur with it, that majority of the educators were nurses. That was a trend setting, that yes, nurses are competent to teach other nurses. And that is one thing which inspired us, that yes, we can also be the educator, not only on the clinical side. And one thing, having nurses as academician, and the vision probably His Highness had in his mind, that nurses can bring rich experience from their clinical practice to education. And that was milestone, that was something which was done as a building block to make sure that yes, nurses can be in education, can become educators and teach other nurses. Now, your question, which you asked me particularly, that do we as academicians need to go back to the practice setting? Yes. See, health industry is a dynamic industry. You cannot simply say that what I learned a year back or 5 years back will be the same for next 25, 30 years. It keeps on changing. You can simply see the example of COVID. We had only one variant last year. Now we have the other variants. So it keeps on with the research, with the exploration, we get to know that there are other things coming up. And that, with that, for that particular thing, we as academicians, we as educators need to go back to the practice setting, learn, get hands-on practice, learn new things, and come back to our students and deliver those things, rather than simply what I learned 20 years back. I cannot teach those things continuously. I have to upgrade. I have to keep updating my knowledge. One thing I must acknowledge here at AKU Sonam again, कि हमारे पास जो है स्कूल ऑफ नर्सिंग में ईच फैकल्टी, हम सबको particularly have to spend some hours every year. That is mandatory as a faculty practice. If we don't do it,
हमारे परफॉर्मेंस पे वो चीज आ जाती है। तो वी हैव टू डू इट, दैट्स वन थिंग कि आपको ऑफिशियली दिया जाता है, और मोटिवेशन इतना होता है कि आप उस आवर्स के अलावा भी कर ही रहे होते हो, अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर ही रहे हो, सो दैट यू कैन कम एंड teach what you have learned into the practice. So it is very, very important for any educator, for any academician to continue with their practice so that they can deliver updated knowledge. Thank you. This is very, very elaborative. I understand one of our participants has a flight to catch, so I'll probably maybe do a last question with her before she goes to the airport. Yasmin, मेरा आखिरी सवाल आपसे शायद before you leave sort of is के I understand nursing is a career. ना सिर्फ इस career में, बल्कि बहुत सारे careers में हमारे especially women has to face a lot of challenges in sort of not only pursuing education but pursuing career for a very, very long period of time. आपके ख्याल में what should be done to support women get highest quality of education and continue a career like nursing? Thank you, Salman. सलमान, जहाँ तक हम बात करते हैं कि तालीम की, तो तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी भी इतनी तब्दीली के बाद, इतनी चेंजेस के बाद हम देखते हैं कि हमारे माशरे में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी का अंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि वो क्या वजूहात हैं जो कि जिसकी वजह से ये जेंडर इनइक्वालिटी हमारे माशरे में बहुत पाया जाता है। कुछ हमें ज़ाती वजूहात नज़र आती हैं जिसको हम पर्सनल फैक्टर्स कहते हैं, कुछ हमें फाइनेंशियल वजूहात नज़र आती हैं, और कुछ वजूहात सोशो कल्चरल फैक्टर्स है। जहाँ तक हम सोशो कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो मुझे ये लगता है कि माइंड सेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ये हम सबको एक पैगाम देना चाहिए कि चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, तालीम हर किसी का बुनियादी हक है। जहाँ हम बात करते हैं पर्सनल फैक्टर्स की, तो देखा जाता है कि ख़वातीन को डर होता है क्योंकि वो सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है या उनको सेफ्टी के इश्यूज रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो सेफ एनवायरनमेंट उनको मिलेगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा परस्यू करेंगी, वो हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगी। और लास्ट, जहाँ फाइनेंशियल इश्यूज की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स उनको मुहैया की जानी चाहिए ताकि वो हायर एजुकेशन ले सकें और अपनी फैमिली और सोसाइटी को इम्पैक्ट कर सकें। एक लास्ट बात कहना चाहूँगी जो कि बहुत कॉमन बात है कि एक औरत की तालीम पूरे कुंबे की तालीम। थैंक यू सलमान। Very, very well said, Yasmin, and thank you for joining us today. We really appreciate and have a very safe flight. All right, so I want to go back again to Saima. Saima, आपने ना सिर्फ AKU से नर्सिंग की तालीम हासिल की है, and you've been associated with AKU for a very long time. But I understand you have also been a beneficiary of many other AKDN institutions. So why don't you tell something about your benefit from other institutions? जो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक इंडिविजुअल जो है ना वो AKDN में ग्रो कैसे करता है। अगर हम उसको एज एन एग्जांपल देख लें, मैं अर्ली स्कूलिंग टिल माय मैट्रिक वाज फ्रॉम आगा खान स्कूल गार्डन। तो अगर मैंने देखा जाए तो मेरी एजुकेशन की पूरी अब तक के जो करियर में है वो AKDN से रेलिवेंट ही है। तो अगर हम आगा खान स्कूल की बात करते हैं तो वो एक वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो मुझे उस वक्त मिली थी, तो वो करिकुलम उस वक्त डिस्टिंग्विश करता था दूसरी स्कूल सिस्टम्स के कंपटीशन में। तो उसमें ये था कि वेल राउंडेड अप्रोच थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये जो इकबाल ग्रुप, जिना ग्रुप, सर सैयद ग्रुप का जो इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप के जो कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो वो इतने वाइटल थे कि वो अब रियलाइज होता है जब हम अपने बच्चों में देख रहे होते हैं और उससे यंगर को, कि वो शेपिंग और वो ट्रांसफॉर्मेशन तो उस टाइम पे शुरू हो गई होती है। लाइक आई वाज वेरी मच एक्टिव इन क्विजेस, डिबेट्स, यानी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन हो। स्पोर्ट्स में वीक थी मगर शौक हर काम करने का था, तो अरमान कोई भी छोड़े नहीं। तो वो जो एक हारने जीतने का एक जो स्किल लर्न करने की जरूरत होती है, तो वो स्कूल ने हर एक अपॉर्चुनिटी दी। तो वो जो उस वक्त
की जो चीजें थी अलोंग विद करिकुलम को ऑलराउंडेड होने के साथ, उस जमाने के अंदर स्कूल हेल्थ नर्स और स्कूल हेल्थ डॉक्टर का कोई कॉन्सेप्ट कहीं और मौजूद भी नहीं था, मगर हमारे पास स्कूल के अंदर वो सिस्टम भी था। मुझे याद है हर मीटिंग के ऊपर जब भी होता था तो हेल्थ के बारे में मेरी मदर को इतने सारे मल्टीविटामिन मिलते थे, और जो साथ में जो है वो मिल्क देना है, और ये और मेरी मम्मी की एक ही शिकायत होती, मेरी बेटी दूध नहीं पीती, मेरी बेटी खाना नहीं खाती। तो वो काउंसलिंग का काम, वो आई का चेकअप होना, ये बहुत सारी चीजें, एक जो खाली करिकुलम को करिकुलम करके अंदर डालने वाली कहानी नहीं थी वहां पर। तो क्योंकि एक इंडिविजुअल को होलिस्टिक अप्रोच लेके इन्वेस्ट किया जा रहा था, तो दैट गेव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। फिर इन कॉम्बिनेशन विद दैट के जो जमाती इदारों का जो रोल है हम लोग की लाइफ के अंदर, जिसके अंदर गाइड्स ले लिए, जूनियर गाइड ले लें, बैंड क्लास ले ले, वास क्लास हो गई, तो ये सारी वो अपॉर्चुनिटीज थी जिसमें कम्युनिटी सर्विस का मतलब तो बाद में समझ में आया, मगर इंगेज उससे बहुत पहले हो गए थे। और उसके साथ जो चीजें सीखने को मिली कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ अपने आप को बाकी चीजों में कैसे जो है इंगेज करने की जरूरत है। तो टाइम मैनेजमेंट के होमवर्क भी करना है, एग्जाम और टेस्ट आ रहे वो भी आ रहे, और कम्युनिटी के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है आरईसी के साथ साथ, तो वहां पे भी पार्टिसिपेट करना है, और दोस्तों के साथ थोड़ा सोशलाइज भी होना है क्योंकि फ्रेंड भी वहां जा रही है, ग्रुप वहां पे ये कर रहा है, तो कहीं पीछे नहीं रहना है। तो वो जो एक एक्टिव वे ऑफ लिविंग और टाइम को जो मैनेज करना और पॉजिटिवली कैसे कंस्ट्रक्ट करना, और पेरेंट्स का हर चीज में ये कि इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया, वजह इसकी कि क्यों लिया, तो इसमें तुम्हारा नाम क्यों नहीं, यानी ये ऑटोमेटिक एंड ऑब्वियस था कि हर जगह पे हिस्सा होना चाहिए। एंड व्हाट वेंट रॉन्ग कि आप अगर यहाँ पर नहीं जा रहे हो। एंड साथ में ये हमेशा कॉन्सेप्ट था, एक तो स्कूल में भी ये था कि ऑल द टाइम फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर टू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट। सिमिलरली फैमिली ने हमेशा इसी बात को सपोर्ट किया कि बेटा हारने का मसला नहीं है, रेस में शामिल होने का बहुत जरूरी है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ एनकरेजमेंट। तो वो जो था वो AKU और AKDN के जमाती इंस्टीट्यूशन, प्योर करिकुलर इंस्टीट्यूशन, उन्होंने वो शेपिंग अर्ली लाइफ में कर दी थी। फिर इसके बाद जो रही सही कसर थी वो जब AKU में दाखिल हुए स्कूल ऑफ नर्सिंग में, तो उन्होंने पूरी कर दी। शुरू में वो टाइम होता था, मुझे याद है कि प्रैक्टिकल से पहले या ऐसा होता था तो पेट में दर्द होता था, नौजिया हो जाता था, तो स्कूल मिस करने की कोशिश की, थोड़ा लेट कराया, तो मम्मी ने अगर वैन मिस कर दी तो रिक्शा में पहुंचा दिया कि स्कूल ऑफ तो नहीं होती है, कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है। तो वो वहां पे से नहीं कॉपरेशन मिला या एक कंसिस्टेंट एक फीडबैक मिला। तो वो कभी कभार एग्जाम होता था तो एंजाइटी होती थी। जब आप AKU स्कूल ऑफ नर्सिंग में जिन्होंने भी हमें से पढ़ा है और जो अभी भी जानते हैं स्कूल ऑफ नर्सिंग को, आपको पता नहीं चलता एवरी डे इज योर ऑन गोइंग असेसमेंट, तो इतनी मुश्किलें पड़ी कि सब आसा हो गई। तो एक नया लेवल ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक नया लेवल ऑफ स्ट्रेस लाइफ को डील करने का, तो वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स इतने सारे हुए। फिर जो आगा खान स्कूल गार्डन का जो एक कंट्रीब्यूशन वो था कि अर्ली करियर की जो काउंसलिंग होती थी, मुझे ग्रेड 7 में समझ में आ गई थी कि मुझे नर्स बनना है। बहुत सारे प्रोफेशन से खाली इतना पता था कि डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर इसलिए नहीं बनना है कि गली मोहल्ले में डॉक्टर ही तो होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन तो नहीं लगाना था। नर्सिंग की बहुत सारी समझ नहीं आई थी, मगर ये समझ में आ गई थी, और जमात खाने में हाजिर इमाम का सुन लिया था कि PhD भी करके और रिसर्च कर सकते हो, तो ये समझ में आ गया था कि लाइंस तो यही वाली ड्रॉ करनी है। हॉस्पिटल में किसी को विजिट नहीं किया था, मगर एम्बिशन और एस्पिरेशन उस वक्त डेवलप हो गई थी। तो आगा खान स्कूल का जो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या एजुकेशन सिस्टम का आगा खान में ये बहुत बड़ा था कि आप अर्ली लाइफ से शुरू करते हैं, फिर आप उसको हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देते हैं, कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी तक, फिर हैंड होल्ड करते हैं वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की तरह। तो वो जो एम्पावरमेंट का जो सफर है वो ऑन गोइंग और वो कंटिन्यूअस है। तो मैं वो उन ब्लेस्ड लोगों में से थी कि जिनको वो सारी चीजें मिली फैमिली के सपोर्ट के साथ साथ, एंड विच रिजल्ट्स एज एन आउटकम for me and my family as an individual, but the profession for AKU, Aga Khan School education system, and the society everywhere. Thanks, That's all Saima. from This me. is wonderful. This is wonderful to know. Sadaf, आप भी तो Aga Khan School की alumni रही हैं. To what extent Aga Khan School has helped you build foundation for your education in nursing? First of all, I would just want to say, which Miss Samina Varteji said about clinical and acute care, that this is so unique in AKU, and I think that's how we all build. That this is only in AKU where you can see that faculties are actually practicing in clinical area to teach students
at the academic world. और ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक नर्सिंग स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए कि आप एज अ नर्स आपको कितनी नॉलेज है जो आप अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में खुद लेक्चरर हूँ और मैं खुद पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, और कभी मेरा रोल एज अ स्टूडेंट होता है, कभी एज अ फैकल्टी होता है, तो मैं एक ही टाइम पे हॉस्पिटल में जॉब भी साथ में करती रहती हूँ जब मेरा वीकेंड ऑफ होता है, ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस को इतना एक्टिव रख सकूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो दे सकूँ. एंड कम बैक टू द सेम क्वेश्चन कि my schooling was from Aga Khan School Garden as Miss Saima Sachwani, and I think that was a base for me. Or as all others say that AKDN एक ऐसा institute है जिसमें हमें एक flower की तरह हमें nourish किया गया, हमें proper lightning भी दी गई, proper food भी दिया गया, proper water दिया गया, हमें हर चीज़ एक प्रॉपर क्वांटिटी में दी गई ताकि हम एक अच्छे फ्लावर की तरह, एक अच्छे प्लांट की तरह ना सिर्फ हम ग्रो करें बल्कि और अपने साथ दूसरे प्लांट्स को भी ग्रो करा सकें. आगा खान स्कूलिंग का इसमें बहुत बड़ा हाथ था मेरे लिए, क्योंकि मेरी अर्लिंग स्कूलिंग वहाँ से थी. आफ्टर माई डैड पास अवे आई वेंट टू अ सिवियर मेजर डिप्रेशन इन माई चाइल्डहुड, सो माई फैकल्टीज इन आगा खान स्कूल helped me a lot to bring me back where I used to be, because I was a really genius child until grade 4 when my father passed away and I went into depression for good 2 years and my grades went down really bad. I used to fail in my classes. It was a really disastrous kind of years for me. But मेरी टीचर्स ने, मेरी फैमिली ने, खासकर मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया. एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास, वो इतनी एजुकेटेड नहीं थी कि वो मुझे घर पे पढ़ा सकते, तो एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लास, टीचर्स से जाके बात करना. आगा खान स्कूल was the only school at that time who used to have actually a nurse in a school whom you can go and talk, what are the issues you're suffering, why you're not doing good in your school performances, because they used to have all your profile with them कि आपने grade 1 में क्या किया था, grade 2 में आपकी पूरी फाइल्स होती थी उस जमाने में, कि आपको स्टूडेंट्स को मंथली या 3 मंथली चेकअप होता था, उसमें आपको नर्स बुला के सारे सवालात करती थी, आपने क्या किया, आप कहाँ पे वीक हो रहे हो. तो आई थिंक दैट वाज द बेसिक फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ अस हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम आगा खान स्कूल, कि किस तरह हर चीज़ को अपने स्टूडेंट्स के साथ ज्वाइन करना है. ना सिर्फ उसकी स्कूलिंग को आपको देखना है कि वो एकेडमिक में कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको उसकी मेंटल हेल्थ को भी देखना है. आपका स्टूडेंट क्यों नीचे जा रहा है, उसका ग्रेड पोर्टफोलियो A+ से B- पे क्यों चला गया 6 मंथ्स के अंदर. आपको उसकी फिजिकल हेल्थ को भी देखना है, आपको उसकी सोशल हेल्थ को भी देखना है, और उन सारे कंपोनेंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तब एक सक्सेसफुल स्टूडेंट आप क्रिएट कर सकते हैं. अगर अगेन जैसे मिस साइमा ने कहा कि इट्स नॉट अबाउट के विनिंग, बट यू हैव टू बी देयर. आपको हमेशा टॉप नहीं आना है क्लास में, पर आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को किस तरह इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. And then I think major role for me in my career was AKU. I just want to share one story. When I came into UFA to do my master's, I talked to one of my family faculty here कि मुझे जो है वो leadership का course करना है on top of my all other courses. And she told me one thing which I always want to say, and I want to give credit to all my faculties who taught me, Dr. Rosina, Dr. Yasmin, कि आप तो AKU की graduate हैं, उनका करिकुलम तो बहुत अच्छा है, आपको लीडरशिप कोर्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी AKU से पढ़ के आई हुई. एंड दैट वाज सच एन ऑनर फॉर मी एज अ न्यू मास्टर स्टूडेंट एट UFA that my dean at that time told me your faculty and your curriculum is 10 times better than ours. That was an honor for me, and I think credit goes to all our faculty members who put so much efforts. मैं जब यहाँ पे faculty हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पे जो हमारी फैकल्टीज ने मेहनत की AKU में, वो उन्होंने जो फाउंडेशन किया, लिटरली वो हमको डांटते थे, तुम कहाँ जा रहे हो. वो लाइक अ पेरेंट दे यूज्ड टू नरिश अस. वो हमारे साथ मस्तियां भी करते थे, हमें समझाते भी थे. दे यूज्ड टू टीच अस लाइक देयर ओन किड. And that foundation brought us like here that we are doing PhD, we are teaching other students. And I can say one thing at the end, whatever nourishment and care you get in AKU, nowhere in the world you can get that. The quality of education, the quality of love and support you get from your faculties,
no other faculty in the world, I think, can give you that kind of nourishment and care. So thank you to all my faculty. This is the platform I can say thank you. So thank you for giving us best from all of the things. And thank you. We are really gratitude that we are AKU alumni. Thank you. Excellent, excellent. Sadaf, thank you. So I have many questions to cover, but I think thoda sa we have to be sort of also be cognizant of the time. I respect all of your time and also the people who are attending this session. So I want to now maybe skip a few questions I had and run a very quick 1 minute round. And I want to start with Dr. Shaila Hirani. Shaila, you have been an inspiration for many. You have benefited from Aga Khan Development Network. You have also contributed in many ways. What is one message that you would want to say, not just as a sort of a matter of gratitude to the institution, but what's a message you want to give to women who are looking up at you and many institutions for support? What is one message you would like to give? Thank you so much, Salman. So I would say that अगर कोई भी माशरे में औरत या मर्द नर्सिंग करने का डिसीजन करते हैं तो आई वुड से कि ये आपका बेस्ट डिसीजन है. फॉलो योर पैशन. और सोसाइटी के लिए मेरा ये मैसेज है कि प्लीज़ उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि ये जो है वो हमारे फ्यूचर में नर्सेज बनकर, ये मेल्स या फीमेल नो मैटर बोथ द जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर यही हैं जो हमारी कम्युनिटी में एक बिग चेंज ला सकते हैं. ये जो है वो फ्यूचर के रिसर्चर हैं, क्लिनिशियंस हैं और एक बहुत बड़ी चेंज एजेंट है. और यहाँ पर जो है वो AKDN का मैं रोल हाईलाइट करना चाहती हूँ और उनको बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, जिन्होंने ना सिर्फ मेरी कैरियर जर्नी में बल्कि बहुत सारे दूसरे जो है वो स्टूडेंट्स की कैरियर जर्नी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है. पेरेंट्स के लिए एक लास्ट मैसेज है कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो एक पर्टिकुलर कैरियर चॉइस करते हैं तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करो, क्योंकि हमारे यूथ्स में जो है वो डिप्रेशन कॉमन है, सुसाइड कॉमन है. मैनी टाइम्स उनको अपने कैरियर में ही आगे नहीं बढ़ने मिलता, तो वो जो है वो अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो भी फील्ड चूज करते हैं उसमें चूंकि वो इंटरेस्टेड फील नहीं करते तो देन फिर दे ट्राई टू क्विट इन डिफरेंट मैकेनिज्म. सो प्लीज़ उनको हर तरह का सपोर्ट दें. हमारे अपने जमाती इदारे जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं. यहाँ पर जो है वो मेरी कैरियर जर्नी में AKU, आगा खान स्कूल, SMS आगा खान स्कूल जहाँ से मैंने तालीम हासिल की, फोकस पाकिस्तान और AKF का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. जो है मैं चाहूँगी कि आप जो भी जमाती इंस्टीट्यूशंस को बिलोंग करते हैं या वहाँ से अगर आप जितना भी बेनिफिट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द गाइडेंस, प्लीज़ डू सो, बिकॉज ये वो इदारे हैं जो किसी का भी कैरियर जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं थ्रू अ प्रॉपर गाइडेंस. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द AKDN इंस्टीट्यूशन और जो है हमारे हाजरी इमाम प्रिंस करीम आगा खान का, जिन्होंने इतने अच्छे इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए जो कि विमेन के लिए स्पेशली इनको इतना एम्पावर कर देते हैं कि वो ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि ऑल्सो इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो अपने आप को प्रूव कर सकती हैं. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Shaila. Neelam, you, just like Shaila, you have also been a beneficiary of many Aga Khan Development Network institutions, programs, and scholarships. So what would be your message to very young girls who are aspiring to be role models like you? I would like to tell them कि आप जो भी अपने ड्रीम बनाते हैं, because जब हम स्कूल्स में होते तब ही सोचना शुरू कर देते हैं कि मुझे नर्स बनना है या डॉक्टर बनना है या मुझे अकाउंटेंट बनना है. I would say don't follow your friends or your siblings. Follow your dreams. Do whatever you love to do. और ऐसा प्रोफेशन आप सेलेक्ट करें. आप अभी तो हमारे पास जो AKDN के इदारे हैं वहाँ पे करियर काउंसलिंग बैक देन व्हेन आई वाज चूजिंग माय करियर तब भी थी, लेकिन आई थिंक अब लोगों को एक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छा है. प्लस सोशल मीडिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में मालूम कर सकते हैं. एंड दैट्स हाउ यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू डू. और जो भी आप अपना करियर चूज करते हैं उसको आप इस तरह से ले जिसको आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर सके. दैट शुड नॉट कम एज
जिस पे आपको मेहनत करनी पड़े. ऑफ कोर्स यू हैव टू डू हार्ड वर्क, बट इट्स नॉट जिसको आप कहें कि नो आई एम जस्ट हैविंग हार्ड टाइम डूइंग इट. आप ऐसा कोई काम करें जिसको यू जस्ट ऑलवेज लव टू डू दैट. एंड अगेन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है. आई एम सो प्राउड टू से कि मेरे मदर फादर कभी लोगों को ये नहीं कहते थे कि हमारी बेटी जो है वो हमारा बेटा है, जो अक्सर माशरे में कहा जाता है. तो वन मैसेज फॉर पेरेंट्स कि आप हमेशा अपनी बेटियों को प्राउडली कहें कि ये मेरी बेटी है. डोंट टेल देम ये बेटी जो है हमारे बेटे जैसी है, बट ये हमारी बेटी है. सो वन मैसेज. Akhan, last message is AKDN has a lot of things to offer. For example, Akhan Foundation has played a lot of great role in my journey, because other than that मैं यहाँ कनाडा में अपना PhD नहीं करी होती. I'm a recipient of ACAP scholarship, and I'm so thankful to AKDN that they are helping us to pursue our career, and I'm fulfilling my dreams now. Thank you, Neelam, for a very, very inspiring message. Madina, I just want to sort of turn to you, maybe for one final thought. You mentioned कि आप एक बहुत ही humble background से थे, but now you are globally recognized as sort of a role model nurse. आपके ख्याल में family, surrounding, community, what is their role in helping women grow as professionals? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है सराउंडिंग का, फैमिली का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एज द पेरेंट्स आपके ऊपर ट्रस्ट होना पेरेंट्स का, वो एक बहुत बड़ा जो है वो अपने भी ही एक कॉन्फिडेंस देता है, सो दैट यू कैन ग्रो. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड AKDN का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन माई करियर, बिकॉज द वैल्यूज विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम द AKDN इंस्टीट्यूशंस, वो जो वैल्यूज डेवलप हुई हैं वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्प कर रही है मेरे करियर में, लाइक द वैल्यू ऑफ गिविंग, द वैल्यू ऑफ चैरिटी. तो ये सारी जो चीजें हैं कि अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स पेन एंड सफरिंग, और उस कंडीशन में अगर कोई जो है वो फाइनेंशियली या फिर किसी भी तरीके से अगर कोई दीदी है, उसको हेल्प की जरूरत है, तो वो जो हेल्प ऑफर करने वाला जो एक वैल्यू डेवलप हुआ है, दैट इज रियली फ्रॉम द AKDN इंस्टीट्यूशंस. आई हैव गॉट दैट. और ये जो वैल्यू है वो एज अ नर्स मुझे बहुत हेल्प करता है मेरे ओवरऑल करियर में. इसके अलावा एज अ फॉर यंगस्टर्स आई वुड से कि प्लीज यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, what is your strengths and what are the areas in which you are good at, and you have to work and you have to work hard to उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए, और उसी में अपना करियर सेलेक्ट करना, ढूंढना और चूज करना. And as a parents, is the responsibility of a parents to nurture your child in a way कि वो जो है वो अपने strengths को और ज्यादा जो है वो polish कर सके और उसमें आगे बढ़ सके. So this is my brief message to everyone. Thank you. Thank you very much, Marina. Samina, I just want to sort of turn to you as well. And so I understand कि आप जो है वो ना सिर्फ professionally have been very, very active, but as a volunteer, you have also been very active. And I'm sure as a volunteer, you have learned a lot from other volunteers. So what is your message to those nurses who are very young nurses right now, early into a career? What is your message? How important is to also be engaged voluntarily in health activities, and to what extent that helps in professional development? Thank you, Salman. Basically, being volunteer is really something that it comes out from from your inside. And message, if you want me to give them, that this doing paid job is something that everybody does. Doing something volunteer gives you a feeling that you're contributing additional to the society. You are helping the society, you are trying to nurture the society. So I think so it is. And one more important thing, that you feel empowered, that you feel that yes, you are something, that you're doing something. You're not just doing that 8 to 5 job and that's it, and that was supposed to be done because you have to have money, but you feel empowered that you can do more than that. You have that capacity, you have that, आपके अंदर इतनी वो कुव्वत है कि आप अपने लगे बंदे काम के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो. तो वॉलंटियरिज्म इज समथिंग जो कि आपके अंदर से आना चाहिए, और उस जब आपको फीलिंग आती है तो डू इट एंड फील दैट यस यू आर कंट्रीब्यूटिंग, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, और अपने आप को एम्पावर फील करो कि यस आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि यू
doing more than that. जितना आपका कहा गया है उससे ज्यादा भी आप कर रहे हो. So I think so this is very, very important for our Pakistani girls, Pakistani nurses to try and, you know, think beyond, go out, think out of box कि मैं इसके अलावा भी कर सकती हूँ. मेरी कैपेसिटी अगर हॉस्पिटल में या कम्युनिटी में जो जॉब कर रही हूँ उसी को मैं कहीं एज अ वॉलंटरी सर्विसेज में दे सकती हूँ. कैन आई डू इट? इफ आई कैन इवन a little bit, what I always say, जब मुझे कोई कहता है ना कि I always say कि even if I contribute a bit, इतना भी, तो why not? Why can't I do it if I have that capacity? So just think about it कि अगर आप इतना भी एक टाइम दे सकते हो किसी को, या just few words of you know kindness, आपको नहीं पता उस बंदे के लिए आप कितना ज्यादा कर रहे हो. आपका शायद few words of kindness ही बहुत कुछ हो सकता है, टेलीफोन टॉक या कुछ भी. So I think so it's very, very important for our girls to do it. Thank you very much for your wonderful thoughts, Amina. So probably the last question towards Dr. Rosina. आप जो हैं, I think AKU School of Nursing की पहली PhD, graduate of AKU School of Nursing who went for PhD. You were also chairperson of the Akhan Health Board. So you have been a role model for many, many, many women in many, many, many days. And so I would want to probably ask you the last question. What are your thoughts for young women who are aspiring to be professionals, not just in nursing, but in any profession they want to go? What are some key takeaways they can take home from role models like you? Okay, what should they do in their lives to go all the way and become global leaders in their fields? Thank you, Salman. You've been very generous and kind. I would say that while everybody is saying कि हम how blessed we are from AKDN, तो मैं इस थीम को कंटिन्यू करूँगी कि हम बचपन से ही हमने गार्डन स्कूल सुना, SMS सुना. मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल खारादर AKES सिस्टम से की, और जो ब्यूटी हमारे टीचर्स की सबने बताई वो AKES सिस्टम में ये थी कि प्राइमरी स्कूल में मेरी मैथमेटिक्स की टीचर ने आइडेंटिफाई किया कि आई हैव अ पोटेंशियल टू बी लीडर. आई डोंट नो हाउ शी डिड दैट इन 5th grade, एंड शी ऑल्सो रिकग्नाइज कि अब मजीद खारादर स्कूल में आपको ग्रूम होने की जगह नहीं मिलेगी. सो शी सपोर्टेड मी इन डेवलपिंग माई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, एंड उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे एक इंग्लिश प्राइवेट स्कूल में जाना चाहिए. तो आई थिंक ये भी एक ब्यूटी है. तो दिस आई लर्न फ्रॉम AKDN कि जब आप वॉलंटरी काम करते हैं, जैसे मैं आखान हेल्थ बोर्ड की चेयर थी या उससे पहले AKRSP या AKHSP में काम किया, उसमें जेनरोसिटी, लीडरशिप, आइडेंटिफाइंग टैलेंट, नर्चरिंग एंड ग्रूमिंग टैलेंट, ये मैंने सीखा अपनी जर्नी के दरमियान. मल्टीटास्किंग कैसे करना है, ऑर्गेनाइजेशन, टाइम मैनेजमेंट, वो आप सीखते हैं एज यू आर गोइंग ऑन. एंड जैसे समीना ने भी कहा कि एम्पावरमेंट आपको फील होती है. बट आई थिंक जो लेसन्स मैंने वहाँ से उठाए वो ये उठाए कि हाउ ब्लेस्ड वी आर दैट मौलाना हाजिर इमाम हैज़ गिवन अस सो मेनी इंस्टीट्यूशंस फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर सपोर्टिंग अदर्स टू बी द जेनरस एंड काइंड विद अदर्स, और मेंटरशिप जो मिलती है. और इसने सोसाइटी से बड़ा करीब किया मुझे. इदारों में जब हम काम करते हैं तो उसमें हम लोगों के मसाइल देखते हैं, लोगों की डायनामिक्स, लाइफस्टाइल देखते हैं, कम्युनिटी में काम करना देखते हैं. जैसे मैं बार बार देखती थी कि एक बच्चा बार बार हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है डायरिया वॉमिटिंग से, ड्रिप्स लग रही हैं, घर जा रहा है, उसके पास वो पैसे भी नहीं है जिसमें वो हॉस्पिटल आ रहा है. लेकिन कम्युनिटी में AKRSP में काम करने से मुझे पता चला कि वो वाटर एंड सैनिटेशन का इशू है जिसकी वजह से वो बच्चा आता ही रहेगा, और इसलिए हमें उसको वाटर एंड सैनिटेशन को सही करना है. तो नर्सिंग ने हेल्थ के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं उसको साथ लेके चले. एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो है, जो यूथ हमारी देख रही है, बच्चे और बच्चियां, उनके लिए है कि आप अपनी लाइफ में जब आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, हैव फन को मिस ना करें, इतने सीरियस ना हो जाएं अपने जॉब लाइफ में, कंपटीशन में, एंड अपनी वॉलंटरी लाइफ में कि आप अपना फन मिस कर दें. फन करें, लेकिन जैसे बहुत सारों ने यहाँ पे कहा कि हमने अपने पीयर से देखा,
उन्होंने हमें ओपन हाउस में ले गए. हैव गुड फ्रेंड्स जो आपको मोटिवेशन और एनर्जी दे. पीयर ग्रुप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वाइल यू आर हैविंग फन, मैं 3 P's का मैसेज छोड़ के जाना चाहती हूँ. पैशन, हम में से बहुत सारे लोगों ने बात की. P फॉर पैशन, अपना पैशन आइडेंटिफाई करें, उस पैशन को करने के लिए परसिस्टेंट रहें. जब आप परसिस्टेंस रखेंगे, द अदर P, तो आप हार्ड वर्क करेंगे, अपने इंटरेस्ट से करेंगे, मोटिवेशन से करेंगे, किसी को पुश नहीं करना पड़ेगा. मगर एक और चीज याद रखें, पैशन और परसिस्टेंस आज हमारे बच्चे बहुत कर रहे हैं, इदारे उनको सपोर्ट कर रहे हैं, फैकल्टी सपोर्ट कर रही है, मगर पेशेंस हम में कम हो गया है. द थर्ड P. और पेशेंस कैसे कम हो गया है कि हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, और सोशल मीडिया ने इस क्विक रिजल्ट को और भी ज्यादा क्विक बना दिया है. अभी मैंने एक अपनी पोस्ट डाली और मैं इंतजार कर रही हूँ लाइकिंग्स कितनी आएंगी, जल्दी जल्दी लाइकिंग्स आए. तो जब तक वो नहीं आती है, मुझे ना खाना अच्छा लग रहा है ना सोना अच्छा लग रहा है. ये हमारे बच्चों की, यूथ की जिंदगी है कि वेरी फास्ट फीडबैक. सो हर चीज जिंदगी में फास्ट चाहिए. पैसा भी जल्दी कमाना है, रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, आगे भी जल्दी बनना है, बहुत बड़ा जल्दी बन जाना है. तो पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पैशन, persistence, and then patience. Gradually you will get it. और hard work never go waste. तो आप हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहें, इदारों से फायदा उठा के ब्लेस्ड समझें, जो आज आपको फायदा मिला है वो दूसरों को पहुंचाएं. हैव फन, कीप स्माइलिंग. क्योंकि मुझे इमाम की 1981 की बात हमेशा याद रहती है कि मौला ने जब इदारा AKU स्टार्ट किया तो इमाम ने कॉन्वोकेशन या नर्सिंग ग्रुप के साथ, उस जमाने में हम कॉन्वोकेशन नहीं कहते थे, तो इमाम ने कहा इफ यू फेल आई हैव फेल्ड, इफ यू सक्सीड पाकिस्तान विल बी रिवॉर्डेड. बोला तो ये नर्सेस के लिए है उस वक्त नर्सिंग को, लेकिन आई थिंक ये तमाम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम फेल होते हैं तो AKDN के इदारे और इमाम कहते हैं कि मैं फेल, लेकिन अगर हम कामयाब होते हैं तो इमाम क्रेडिट नहीं ले रहे. इमाम कहते हैं कि इससे पाकिस्तान विल बी रिवॉर्डेड. एंड देयरफॉर आई वुड से कि हम 8 लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सिंबॉलिक है, मगर एक्चुअली ये अवार्ड जो दुनिया में मिला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ये AKU को मिला है, नर्सिंग इन पाकिस्तान को मिला है, और से पाकिस्तान का नाम जिंदा हुआ है. तो AKDN जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद.